guys and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं Manish and I'm here with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart the show, I do want to remind you guys to check out our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. On that note, here are our top stories. Netizens suggest names for Kareena and Saif's newborn baby boy. Sushmita Sen, Kiara Advani and Nora Fatehi graced a prestigious awards show with their presence in Mumbai. Disha Patani stands by Tiger Shroff as he injures himself on a football field. Vidhu Vinod Chopra confirms Aamir Khan's PK story will move forward with Ranbir Kapoor. Varun Dhawan, Kriti Sanon team up for horror comedy Bhediya. Chote Nawab Taimur Ali Khan has become an elder brother. And the controversy has started to build up on social media about the newborn's name. What are the netizens saying and what did the Pataudi family have to say about it? क्या अभी करीना और सैफ ने तैमूर के छोटे भाई का नाम डिसाइड कर रखा है? Kareena Kapoor Khan has given birth to a baby boy and the newborn as well as mother Kareena are safe and healthy, said the excited father Saif Ali Khan in an official statement. और जैसे ही ये खबर बाहर आई, social media went crazy suggesting all types of names for the newborn. हालांकि किसी पटौड़ी के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी होना कोई नई बात नहीं है। जब सैफीना ने अपने पहले बच्चे का नाम तैमूर रखा था तो सोशल मीडिया में जमकर हंगामा हुआ था और इस हंगामे का असर ये है कि जब इस बार करीना से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने होने वाले बच्चे का नाम सोच रखा है तो उन्होंने कहा कि वो अब लास्ट मिनट ही सोचा जाएगा। Guys, little Taimur is delighted about the birth of his new baby brother. ये कहना है रणधीर कपूर का। Kareena has given birth to a baby boy and Saif too is super excited about it. ये खबर आते ही सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने सैफीना और तैमूर को कांग्रेचुलेट किया, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग पटौड़ी खानदान के सबसे छोटे नवाब के नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। टेक अ लुक। तैमूर के नाम को लेकर खास हंगामा होने की बड़ी वजह एक टर्किश इन्वेडर था जिसका नाम तैमूर लंग था और यही रीजन है कि इस बार भी लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि सैफ और करीना अपने न्यूबॉर्न सन का नाम क्या रखते हैं। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने तैमूर के छोटे भाई का नाम सजेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, "Can't wait to see what Kareena and Saif name their second baby." जिसके जवाब में एक यूजर ने लिखा, "सिकंदर sounds नवाबी।" तो वही दूसरे यूजर ने लिखा, "I don't know. Maybe Azam Khan is a great name." एक अन्य यूजर ने जोक करते हुए ट्वीट किया, "Literally named my first baby Taimur and now Kareena is pregnant again, so I guess whatever she names her second child shall be my second child's name too." करीना कपूर खान के पापा और तैमूर के नाना यानी कि रणधीर कपूर seems to be super excited about the newborn. When asked about who the newborn looks like, उन्होंने हॉस्पिटल से कहा कि उन्हें तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। When asked again, he said, "Well, they are all saying that he looks like his elder brother Taimur." Well, that probably is true, Randhir sir. सोशल मीडिया पर सैफ और करीना को बधाई देने वालों में से सबसे आगे थी आलिया भट्ट। Congratulations, Bebo and Saif and my little Tim Tim. Can't wait to meet your baby brother. Followed by heart emoticons, she tweeted. We all wish them a hearty congratulations and yes, we too are waiting to know the name of the little baby. आज मैं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाली। फाइनली एक्साइटेड टू गो बैक ऑन सेट एंड मेक अ गुड फिल्म और जो भी फिल्म रिलीज होगी होपफुली दिस ईयर we'll get to know more when that will happen. जपना भाई जपना, क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो।
star-studded award show. Actors dazzling in glamorous outfits. From Nora Fatehi to Sushmita Sen, all lit up the red carpet, made this event a successful outing. Let's check it out. गाइस, बात हो रही है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड शो की which was organized recently, जहां हमारे सेलेब्स ने रेड कार्पेट पे धमाल मचा दिया. The very hot Nora Fatehi से लेकर the most beautiful सुष्मिता सेन तक कई सेलेब्स इस अवार्ड शो में शामिल हुए. वैसे तो अवार्ड शो में किसने कौन सा अवार्ड जीता, इस बात का इंतजार तो सभी को रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंतजार रहता है इस बात का कि who walked the red carpet wearing which outfit. Well guys, अगर हम हैं तो क्या गम है, हम बताते हैं ना आपको. Take a look. Red carpet of a recent award show was lit as the stars walked down all dazzling and twinkling. One by one they came and they stole the heart of the audience. This award show was organized in Mumbai and celebs made it look nothing short of a star-studded affair by their presence. Nora Fatehi stumped the red carpet in an emerald-colored sari. She was looking wonderfully beautiful and we just couldn't take our eyes off of her. आज मैं परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिल रही हूँ. नेक्स्ट ईयर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिलने वाली हूँ. हमारी कबीर सिंह गर्ल कियारा अडवाणी के तो कहने ही क्या. Black lehenga was looking like it was made just for her. She was looking all dreamy in that attire. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए. हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज हो रही है 2 जुलाई को. बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे. और दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग शूट विद भूल भुलैया 2 व्हिच वाज द लास्ट फिल्म आल्सो दैट वी वर शूटिंग बिफोर द पैंडेमिक. तो फाइनली एक्साइटेड टू गो बैक ऑन सेट एंड मेक अ गुड फिल्म. और जो भी फिल्म रिलीज होगी होपफुली दिस ईयर वील गेट टू नो मोर व्हेन दैट विल हैपन. There was another beauty donning the black and slaying it on the red carpet. Sushmita Sen made this award show a success with her presence and her smile, which always has made her fans go crazy for her. इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन हो और हमारे काशीपुर वाले बाबा जी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है. हम बात कर रहे हैं आश्रम सीरीज से धूम मचाने वाले हमारे अपने यंगर देओल यानी बॉबी पाजी की. He looked calm and super handsome wearing his evergreen smile and posing for the cameras. जपना भाई जपना, क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो. इस अवार्ड शो में बाकी सितारों के साथ कुणाल खेमू और राधिका मदान भी नजर आए. Kunal Khemu was all red at the red carpet as Radhika Madan was stealing the heart of her fans and posing for the paparazzis in her short dress. As the lockdown is over and we are slowly getting used to this new normal, we just cannot wait to see these stars once again on big screen. टाइगर श्रॉफ हुए हैं इंजर्ड. उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी ने की उनकी केयर. क्या है वो इंजरी? क्या ये इंजरी किसी शूट के दौरान हुई या फिर कहीं और हुई? कैसे हैं अभी टाइगर? गाइस, बॉलीवुड के बागी टाइगर श्रॉफ इंजर हो गए हैं, लेकिन ये इंजरी किसी शूट के दौरान नहीं हुई और ना ही ये इंजरी कोई सीरियस इंजरी है. मुंबई के बांद्रा के एक मैदान में फुटबॉल के एक चैरिटी मैच के दौरान टाइगर इंजर हो गए. ऐसे में उनके साथ उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पटानी भी मौजूद थी. अब क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं. टाइगर श्रॉफ और दिशा ने कभी अपने रिश्ते के बारे में यूं तो खुलकर बात नहीं की है, ना ही उन्होंने पब्लिकली अपने रिश्ते को कोई नाम दिया है, लेकिन कैमरा ने अक्सर उन्हें साथ में स्पॉट किया है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. बांद्रा के मैदान में एक चैरिटी फुटबॉल मैच के दौरान टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी को देखा गया. पहले तो वो दर्शक बनकर मैच का लुत्फ लेती हुई नजर आई, पर फिर वो फुटबॉल के साथ खेलती हुई भी नजर आई. मैच के दौरान ही टाइगर श्रॉफ इंजर्ड हो गए और जब स्ट्रेचर पे लेते हुए टाइगर को एक डॉक्टर अटेंड कर रहे थे, तब उनके बगल में खड़ी दिशा उनके साथ बात करती हुई नजर आई. बिजी स्केड्यूल्स होने के बावजूद एक दूसरे के लिए यूं वक्त निकालना अपने आप में इन दोनों के एक दूसरे के लिए प्रीटी स्पेशल होने की बात कहता है. हो भी क्यों ना, दे लुक सो क्यूट टुगेदर.
There were other celebrities too playing this match. Arjun Kapoor, Apar Shakti Khurana, Ahan Shetty also got spotted during the match. दिशा ने इस मौके पर एक व्हाइट टॉप और ब्लैक बॉटम्स और शूज पहन रखे थे. Tiger Shroff, on the other hand, was wearing a sleeveless yellow t-shirt teamed up with a pair of grey bottoms. टाइगर और दिशा को सबसे पहले एक म्यूजिक वीडियो बेफिक्रा में साथ में देखा गया था और उसी वक्त से दोनों के एक दूसरे को डेट करने की बात आने लगी थी. दोनों फिर बागी में एक साथ काम करते हुए नजर आए. दोनों की केमिस्ट्री ने कमाल कर दिया और फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया. अभी टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2, बागी 4 और गणपत कर रहे हैं. वहीं दिशा एक विलन 2 और राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में नजर आने वाली है. हम तो दोनों को यही कहेंगे कि यूं ही एक दूसरे के लिए वक्त निकालते रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए. – 2014 की आमिर खान की सुपरहिट फिल्म पीके का सीक्वल बनने जा रहा है और इस फिल्म में नजर आएंगे रणबीर कपूर. डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म पीके बॉक्स ऑफिस पर रही थी सुपरहिट और इसके बाद यही अंदाज लगाया जा सकता है कि सीक्वल भी एक बहुत बड़ी हिट रहेगी. और इस फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने इस खबर पर मोहर लगा दी. Well guys, रणबीर कपूर और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी संजय दत्त की बायोपिक के बाद एक बार फिर से साथ में काम करने वाले हैं और ये फिल्म होगी पीके की सीक्वल. सभी जानते हैं कि राजकुमार हिरानी जाने जाते हैं अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग के लिए, जिसकी वजह से वो आज बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में से एक है. और दूसरी तरफ है रणबीर कपूर, जिनकी एक्टिंग के सभी दीवाने हैं. As per reports, producer Vidhu Vinod Chopra said they will make a sequel to the film PK. Here's the story. Amir Khan and Rajkumar Hirani collaborated on their second PK in 2014 after their super hit film Three Idiots. और ये फिल्म भी रही थी सुपरहिट. इस फिल्म में आमिर खान एक एलियन के किरदार में नजर आए थे और उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ भी हुई थी. क्या पीके के सीक्वल में भी रणबीर कपूर एक एलियन का किरदार निभाएंगे या ये होगा कोई दूसरा कैरेक्टर? ये तो जब फिल्म आएगी तभी पता चलेगा. लेकिन इस खबर के साथ फैंस में अभी से ही क्यूरियोसिटी आ गई है रणबीर कपूर के कैरेक्टर को लेकर. पीके 2 के अलावा रणबीर कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है. एक तरफ गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर के साथ एक फिल्म आने वाली है जिसकी रिलीज डेट अनाउंस भी हो गई है. ये फिल्म होली में रिलीज होगी. श्रद्धा कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म की कुछ डिटेल्स भी शेयर की हैं. उन्होंने एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि होली पर उनकी फिल्म रिलीज होगी. रणबीर कपूर and Shraddha Kapoor have teamed up for the first time to work together in a special project. The film is directed by Love Ranjan और इसमें अजय देवगन एक स्पेशल रोल प्ले करेंगे. रणबीर कपूर फर्स्ट टाइम प्यार का पंचनामा डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं. फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं. बॉलीवुड स्टार वरुण धवन और उनकी वाइफ नताशा दलाल ने लिया है पब्लिक से थोड़ा दूर रहने का फैसला. शादी के बाद दोनों ने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे के बारे में पब्लिकली ज्यादा बात नहीं करेंगे और प्राइवेट लाइफ को रखेंगे मीडिया और फैन से थोड़ा अलग. दोस्तों
दोस्तों, जहां एक तरफ हर किसी की नजर सेलिब्रिटीज की डे टू डे लाइफ पर बनी रहती है, वहीं कुछ सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनल लाइफ मीडिया और पब्लिक की नजर से दूर रखने में बिलीव करते हैं। हाल ही में न्यूली वेड्स वरुण धवन और नताशा दलाल ने डिसाइड किया है कि वो अपनी लाइफ को लाइमलाइट से थोड़ा दूर रखेंगे। वरुण ने कहा है कि आई थिंक इट वॉज अ जॉइंट डिसीजन बिटवीन नताशा एंड मी टू नॉट टॉक अबाउट अस बिकॉज शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लाइन। देखते हैं फैंस और मीडिया की नजर से वरुण और नताशा खुद को कितना दूर रख पाते हैं। बट फॉर नाउ हियर्स द स्टोरी। वरुण धवन और नताशा दलाल की लव स्टोरी हमेशा से ही फैंस और मीडिया के लिए काफी इंटरेस्टिंग रही है। बहुत कम लोग अपने बचपन के प्यार से शादी कर पाते हैं और जो करते हैं वो सच में लकी होते हैं। वरुण अपनी और नताशा की कहानी शेयर करते रहते हैं। He again recollects the first time he met her in the 6th grade at the basketball court and his thoughts was to marry this girl. Well, हम तो कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही होगा। शादी के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती है और शायद वरुण की लाइफ में भी कुछ तो बदल गया होगा। वैसे वरुण तो कहते हैं कि nothing has changed in our relationship after the wedding. I think we've known each other for too many years. I'm happy and all, but post the wedding, I've also gone deep into work. हमें भी वरुण के आने वाली फिल्म्स का बेसब्री से इंतजार है। वरुण ने कहा है कि वो नए हस्बैंड बने हैं तो वो भी फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे काम को और मैरिड लाइफ को बैलेंस किया जाए। शादी के बाद तो ये काम हर किसी को करना पड़ता है, तो इससे वरुण कैसे बच सकते हैं? वरुण धवन ने फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, जिसमें वो कियारा आडवाणी और अनिल कपूर के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा वरुण धवन इस बार कुछ हॉरर करने वाले हैं। That's right, वरुण धवन and Kriti Sanon will next be seen starring in a horror comedy भेड़िया, which will be produced by Dinesh Vijayan, और ये फिल्म 14th April 2022 को रिलीज होगी। Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. Guys, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि टीवी का सबसे पॉपुलर शो होस्टेड बाय सलमान खान, जहां कई सेलेब्स एक घर के अंदर कई महीनों तक बंद रहते हैं, इस शो का विनर अनाउंस हुआ है। 143 डेज के कंपटीशन के बाद द शो हैज कम टू एन एंड विद रुबीना दिलक क्राउन्ड द विनर ऑफ द सीजन। इस शो की क्वीन रुबीना को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। हियर्स द स्टोरी। सबसे पहला रिजेक्ट का स्टैम्प मिला और आज ही एक्सेप्टेंस मिली। सो आई थिंक मेरी शुरुआत ही जो थी वो संघर्षों से ऐसी शुरू हुई कि उसके बाद संघर्ष ने कभी पीछा छोड़ा नहीं, लेकिन उन संघर्षों ने मुझे एक अलग ही रूप और एक अलग ही तरीके से तराश दिया। अभी तो मैं आई एम लिविंग इन द मोमेंट ऑफ द विक्ट्री, और इस ट्रॉफी के साथ, अपनी विक्ट्री के साथ फ़िलहाल आई एम एन्जॉइंग इट। डिडंट थिंक अबाउट द प्राइस मनी जो अभी आपने एक्चुअली मिले हैं यार। या मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने गांव में एक मेटल सड़क बनवाऊं और इलेक्ट्रिसिटी का एक परमानेंट साधन करूं। तो आई थिंक आई वुड डू दैट। अब इन्होंने बोला फिर से शादी करने वाले हैं। बोला तो है, अभी मिल तो मैं सिर्फ 2 मिनट पाई हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ ही पूछूंगी उनके क्या प्लान्स हैं। फिर से शादी होगी। आई वॉन्ट इट। ऐसे एवी थोड़ी ना बोलेंगे वो, एवी बोला होगा तो आई विल मेक श्योर दैट ही डज दैट। आई एम आउट विथ माई ब्यूटिफुल थर्ड आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये एक स्पॉन्टेनियस, मेरे सभी फैंस के लिए, मेरे सभी फॉलोअर्स के लिए थैंक यू सो मच। आज आपके प्यार और आपके सहयोग की वजह से मैं बिग बॉस सीजन 14 की विनर बन गई। तो फाइनली सलमान खान होस्टेड बिग बॉस 14 का फिनाले हो चुका है। लंबे सफर के बाद आखिरकार विनर मिल गया है। रुबीना दिलाइक के सर सजा बिग बॉस 14 का ताज, और वो रही इस साल की बिग बॉस विनर।
10 मिनट के लंबे लाइव वोटिंग राउंड के बाद सलमान खान announced that the TV actress has won the show by getting the maximum number of votes. Rahul Vaidya bagged the runner-up title of Big Boss 14. राहुल सर नाइस जोड़ी। राहुल भाई बहुत अच्छी जोड़ी आप दोनों। राहुल भाई जरा रुक जाइए ना। Big Boss 14 का ताज पहनने के बाद रुबीना दिलायक ने कहा कि I'm ecstatic. I always wanted to reach till here. It was a dream, but the feeling of victory is yet to sink in. वो कहते हैं ना कि सब किस्मत का खेल है. Probably I was destined for it. This has been an incredible journey wherein I discovered myself, and I'm very proud of it. रुबीना दिलायक ने सही कहा, सब किस्मत का खेल है, लेकिन रुबीना दिलायक की इस जीत के पीछे उनका टैलेंट और फैंस का बहुत सारा प्यार भी है। रुबीना दिलायक के हस्बैंड और उनके को कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला ने भी फिनाले अटेंड किया और वो अपनी लेडी लव के लिए चीयरिंग करते हुए नजर आए। रुबीना दिलायक ने जीत का क्रेडिट अभिनव शुक्ला को भी दिया और हो भी क्यों ना, उनके प्यार और साथ से ही ऐसा मुमकिन हुआ है। She says, अभिनव सपोर्ट मेड मी स्ट्रॉन्गर। रुबीना दिलायक ने कहा कि अब वो डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि शो में उन्होंने एक दूसरे से ऐसा प्रॉमिस किया था। The reality show started off with 11 contestants like Shehzad Deol, Nikki Tamboli, Ejaz Khan, Pavitra Punia, Rubina Dilayak, Abhinav Shukla, Jasmine Vasina and Rahul Vaidya. सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान की प्रेजेंस में शो को अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन जब ये लोग शो छोड़ के गए तो शो को उतना अटेंशन नहीं मिल रहा था। Soon the makers started introducing new twists and turns in the show, and that's how Big Boss 14 started gaining momentum. रुबीना दिलायक की इस जीत पर केवल उनके फैंस ने ही नहीं, काफी सारे सेलिब्रिटीज जैसे हिना खान, विंदु दारा सिंह, विकास गुप्ता, अदा खान, रोहन मेहरा और भी लोगों ने उनको कंग्रेचुलेट किया है। सोशल मीडिया पर कल रात से ही उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल वैद्य के फैंस चाह रहे थे कि राहुल वैद्य इस बार बिग बॉस के विनर रहें। वो भी सोशल मीडिया पर #राहुल वैद्य ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अली गोनी के फैंस भी कह रहे हैं कि उनको असली विनर खैर, ये तो फैंस का प्यार है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए। रुबीना दिलायक ने बिग बॉस जीतने के बाद सोशल मीडिया पर इंस्टेंटली एक लाइव वीडियो भी किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और अपनी बिग बॉस ट्रॉफी को चूमते हुए उन्होंने कहा कि जल्द वो एक लाइव वीडियो अनाउंस करके फैंस के बीच में आएंगी। रुबीना दिलायक ने सलमान खान के लिए कहा कि थैंक यू सलमान सर फॉर ऑल द पेशेंस एंड योर वंडरफुल सपोर्ट। And of course Salman sir for destroying their faith in me. Thank you, thank you, thank you. Well, guys, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. But before I leave, I do want to remind you guys to check out our Zoom Facebook page for all the updates about your favorite celebrities. On that note, this is me, Manish, signing off. Ciao.